Do you want to learn English? Did you ever try to speak in English without fear? Do you know the usage of do, does, and did? If not, you are on the right channel. Today's video lesson is about the use of do, does, and did. And after watching this video, you will be very clear about the use of do, does, and did. तो आज हम सीखने वाले हैं do, does और did का यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि do, does, did आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू डू. अब ये do, does और did एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं. Now, if you want to know the difference between main verb and helping verb, you can check out my previous videos in which I have explained verbs in a very simple way. I have given the link in the description box. You can check out from there. Now, do, does and did. Do और does को हम यूज करते हैं प्रेजेंट में और did को हम यूज करते हैं पास्ट में. अब do और does में कौन सा सिंगुलर के साथ यूज होता है और कौन सा प्लूरल के साथ होता है ये भी हमें पता होना चाहिए. डू को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ. प्लूरल आपको पता होना चाहिए, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल नाउन के साथ आप डू का यूज करेंगे. डज यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ और सिंगुलर प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, एक नाम, एक इंसान का नाम, एक पर्सन का नाम, इसके साथ हम यूज करते हैं डज का. और डिड सबके साथ यूज होता है. डिड में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कौन सा सिंगुलर के साथ कौन सा प्लूरल के साथ. सबके साथ ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ डिड यूज होगा. बट रिमेंबर डिड पास्ट में यूज होगा. Now the verb to do has many uses. Many uses means it has many uses. It is used as a main verb. It is used to make negative sentences also. It is also used to make questions which can be answered with the help of yes or no. It is also used to make WH type questions. WH means WH family. हम छोटे थे जब स्कूल में करते थे ना WH family, what, which, where, whose, etc. ये वही WH family है. Lastly, it is also used for emphasis in the sentences. Now, let's understand the use of do, does and did with example. जब हम do को as a main verb use करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम action perform कर रहे हैं. For example, I do a lot of work these days. मैं इन दिनों बहुत काम करती हूँ. तो यहाँ पे आप देख रहे हो do as a main verb use हुआ है. I do a lot of work these days. ऐसे ही और बहुत सारे examples हो सकते हैं. I do my laundry on Saturdays. She does charity work. They did dance practice yesterday. Now, in all these sentences आपने देखा कहीं पे do आया है, कहीं पे does आया है और कहीं पे did आया है. तो ये do, does और did change होते हैं according to the subject, whether it is singular or plural, और according to the tense. ये सब change होता है. जैसे कि last sentence था they did dance practice yesterday. तो इस sentence में हमें पता लग रहा है कि ये sentence past का है. That's why I have used did here. Okay. We also use do, does and did to make negative sentences. Negative means note. और note हमेशा helping verb के साथ आता है. तो do के साथ जब हम note लगाएंगे तो it will become do not. और हम इसको short करके बोल सकते हैं don't. Does plus note does not. और इसको भी short करके बोल सकते हैं doesn't. Same way, did plus not did not, didn't. To understand the negative sentences, I'll take a positive sentence first. For example, बच्चे PUBG खेलते हैं. Children play PUBG. Okay? ये simple present tense का example है अगर आपको याद है, जिसकी पहचान ता है, ती है, ते है होती है. और अगर आपको नहीं पता है ये भी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं. सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा. तो चिल्ड्रन प्ले पबजी, इसका नेगेटिव क्या होगा? बच्चे पबजी नहीं खेलते हैं. आज के टाइम पे तो नहीं खेल पा रहे ना बेचारे, बैन हो गई है. तो अब यहाँ पे आएगा नोट और नोट किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा. तो इसका नेगेटिव होगा चिल्ड्रन डू नॉट प्ले पबजी. चिल्ड्रन डू नॉट प्ले पबजी. चिल्ड्रन के बाद यूज किया डू. डू क्यों आया है आपको पता होना चाहिए क्योंकि चिल्ड्रन जो कि सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ हमें यूज करना होता है डू.
आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। She does not cook delicious food. He does not want to marry her. They do not tell a lie. She did not talk to me. अब इन सेंटेंसेस में आपने देखा do not, does not और did not का यूज़ हुआ है। do not और does not हमने यूज़ किया है प्रेजेंट में और did not हमने यूज़ किया है पास्ट में। जैसे कि she did not talk to me, आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप अपनी किसी फ्रेंड को मनाने गए हैं, वो आपसे बात नहीं कर रही है और आप उसे मनाने गए हैं, उसने फिर भी आपसे बात नहीं की, she didn't talk to you, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया ना, she didn't talk to you, उसने आपसे बात नहीं की। Now verb do is also used to make yes no type questions. For example, do you play PUBG? क्या आप PUBG खेलते हैं? तो आप इसका आंसर या तो yes बोलेंगे या फिर no में देंगे। तो yes I do, और अगर नहीं खेलते हैं no I don't। अब आप जब yes I do और no I don't बोल देंगे तो यहीं पे एंड हो जाएगा सेंटेंस। देयर इज नो नीड टू से yes I play PUBG या फिर no I don't play PUBG, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। yes I do या no I don't भी ओके है। मोर एग्जाम्पल्स, does she work here? no she does not। और अगर yes में है yes she does। do you study at night? yes I do। did I teach you verbs? आप बताइए, did I teach you verbs? yes I did। आपने अभी देखा हमने do, does, did का यूज़ करके क्वेश्चंस बनाए हैं। हम क्वेश्चंस WH फैमिली का यूज़ करके भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, where do you live? Now here in this sentence I am asking where do you live? आप कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आप yes no में नहीं देंगे, आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस बताएंगे कि मैं यहाँ रहती हूँ, I live in Delhi, I live in Jaipur, ऐसे। और एग्जाम्पल्स देखते हैं WH फैमिली के। Where did you go last night? I went to my friend's house। आपने आंसर दिया I went to my friend's house। आपने नोटिस किया मैंने यूज़ किया went, मैंने go यूज़ नहीं किया। went इसलिए यूज़ किया क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में था। Where did हम पास्ट में यूज़ करते हैं, that's why I said, I answered I went to my friend's house। और सेंटेंस, where did she get it? Her mother gave her। तो यहाँ पर भी आपने देखा where did she get it, ये भी पास्ट का सेंटेंस है जिसका आंसर पास्ट में दिया गया है। Her mother gave her, उसकी मदर ने उसको दिया। We use do, does, did for emphasis। एक्शन को इंपॉर्टेंस देने के लिए भी हम do, does और did का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ती है, she studies। अब आप इसी सेंटेंस को बोलते हो वह पढ़ती तो है, तो यहाँ पर आप एम्फेसिस दे रहे हो, वह पढ़ती तो है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, she does study। she सिंगुलर था इसलिए आपने does यूज़ किया, और do, does के साथ एस और यस नहीं आता है मेन वर्ब में, इसलिए आप देख सकते हो स्टडीज स्टडी बन गया है। और अगर आप इसको और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप मेरे सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो चेकआउट कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से आप बहुत एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश बोलते तो हैं, वी डू स्पीक इंग्लिश। हम आते तो हैं, वी डू कम। वे जाते तो हैं, दे डू गो। इस तरीके से आप बहुत सेंटेंसेस बना सकते हो एम्फेसिस करके। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा डू, डज और डिड का यूज़, जिसके यूजेस बहुत सारे होते हैं। आपने खुद देखा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं, एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।